بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتیاز، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے لا آف مارجنل یونٹ۔ اسے قانون مساوی افادہ مقدم کہا جاتا ہے۔ مساوی افادہ تو اس قانون کا نام ہے قانون لا آف مارجنل یونٹ، قانون مساوی افادہ۔ اسے قانون انتہائی تسکین کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور اس کا تیسرا نام ہے اسے قانون استقلال کہا جاتا ہے۔ یہ قانون کیا ہے؟ عام طور پر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم جب بھی کسی چیز کے ہمارے پاس کوئی ایسی اشیاء ہے جس کو ہم مختلف جگہ پر استعمال کر سکیں تو ہم اس استعمال کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا افادہ میکسیمم ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ۔ مثال کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک 500 روپے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 500 روپے۔ ہم ان کو مختلف شے کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ جو خرچ کیا ہوا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ہم فرض کرو چینی خریدنا چاہ رہے ہیں یا کہ گندم خریدنا چاہ رہے ہیں، تو ہم ان 500 روپے کو کس طرح ان دونوں چیزوں پر لگائیں کہ ہمیں فائدہ زیادہ سے زیادہ۔ آپ نے چیپٹر 1 میں رابنس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی کہ ہر انسان کی خواہشات لاکھ ہے۔ کوئی بھی انسان ہے اس کی خواہشیں بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، پیسہ ہے، وہ بہت کم ہے۔ تو وہ کم وسائل کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ اس سے فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، فائدہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم ڈیفینیشن پہ کر نظر کریں، ذرا غور کریں آپ سب کو۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی شے ہو جسے ایک سے زائد کاموں میں استعمال کیا جا سکے، میرے پاس 500 روپے ہیں اور میں دو چیزوں پر لگانا چاہ رہا ہوں، ایک چینی خریدنا چاہتا ہوں، یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ چاول خریدنا چاہتے ہیں، ساتھ کپڑے خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بھی دو اشیاء ہو سکتی ہیں، گوشت خریدنا چاہتے ہیں، فروٹ خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، دو یا دو سے زائد اشیاء خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، تو آپ ان چیزوں پر پیسہ لگاؤ گے، ان پر آپ کو فائدہ زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہمارے اس کا آج بیس ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی شے ہو جسے ایک سے زائد کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ایسے ہیں اور ایک سے زائد کاموں میں لگا سکتا ہے، وہ تو اس شے کو ان کاموں پر اس طرح استعمال کرے گا کہ ہر کام میں حاصل شدہ فائدہ مساوی ہو اور اس سے زیادہ ہو، کہ جہاں پیسے لگا رہا ہو اس کا فائدہ زیادہ ہو۔ اب اس قانون کو دوسرے طرح سے اگر دیکھا جائے، جس میں نے یہاں پر آپ کو پوائنٹ کر کے بتایا ہے، اس قانون کو قانون مساوی افادہ، دوسرا قانون انتہائی تسکین بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو میں نے آپ کو یہ مثال دیا کہ آپ کے پاس انسان کے وسائل جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن خواہشات کیا ہے وہ ناموجود ہے، اس کو سمجھداری کے ساتھ استعمال کر کے زیادہ فائدہ بات سمجھ آ گئی۔ اس طرح تیسرا نام ہے اسے استقلال بھی کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں پیسہ لگائیں جہاں فائدہ زیادہ ہے، وہاں پیسہ نہ لگائیں جہاں فائدہ کم ہو، ہم زیادہ فائدہ کو ترجیح دیتے ہیں کم فائدہ کو۔ تو یہ ہماری اس قانون کی اوور آل ڈیفینیشن کے اکارڈنگ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ بات سمجھ لیں کہ کیا ہے، کیا آپ کے پاس یہ ذائقہ لگائیاں ہیں اور ہم نے ان کو اس طرح سے استعمال کر دی ہے، کالی سے مراد روپیہ پیسہ ہے، ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہمارا جو حاصل ہوتا فائدہ ہے زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے گوشوارے کی طرف گوشوارہ کی گراف ٹیبل کہتے ہیں، ہم ٹیبل آف کانٹینٹ کے اندر اپنی معلومات کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ سمجھنے کے لیے مزید آسانی ہوتی ہے بچوں۔ اب ہم نے یہ فرض کیا ہمارے پاس ہے زائد کی اکانیاں، یعنی ہمارے پاس کچھ روپے ہیں اور روپے کتنے ہیں؟ وہ 500 روپے ہیں۔ اب آپ کے پاس 100 روپے کا ایک الگ سے نوٹ ہے، پھر 200 روپے اب 200 روپے ہو جاتے ہیں، اگر آپ 200 روپے نکالتے ہیں، پھر تیسرا طرح سے 300 ہو جاتے ہیں، چوتھا طرح سے 400 روپے اور یہ 500۔ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ میں پہلا ہی 100 روپیہ اسپینڈ کرنے لگا ہوں۔ اب کہاں بھی اسپینڈ کرنے لگا ہوں، میرے پاس چینی بھی ہے، میرے پاس گندم بھی ہے، یہ بات بچوں دھیان سے سمجھیں۔ اس بات کو یہ پہلا پوائنٹ پاس سمجھ آ گئی، اسے اگلے پوائنٹ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو میرے پاس ایک 100 روپے کا نوٹ ہے اور میں نے اسے لگانا ہے یا چینی کے اوپر یا گندم کے اوپر۔ اب ہم نے ایک اس کی سیٹسفیکشن رکھی ہوئی ہے کہ چینی پر لگانے سے 30 کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، یعنی زیادہ ہو رہی ہے، اور گندم پر لگانے پر 25 کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پر پیسہ لگائیں جہاں پر ہمیں سیٹسفیکشن زیادہ ہو، تسکین زیادہ ہو، فائدہ زیادہ ہو۔ تو کیا کرے گا صاحب،
यानी कि खरीदार क्या करेगा, उस पर पैसा लगाएगा जिस पर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। तो 20 रुपए क्या किए, लगा दिए। अब गंदम को उसने नहीं खरीदा। अब आगे है अगले 100 रुपए एक नोट लग गया। अब उसका दूसरा 100 का नोट लगाना चाह रहा है, वो 200 रुपए यानी दूसरा 100 का नोट, 200 रुपए 200 रुपए नहीं है, दूसरा 100 का नोट है जो उसके पास है। अब वो किस पर लगाएगा, अब आपने देखे गंदम तो बेटा उसने खरीदी है, चीनी तो नहीं खरीदी है। अब अगर वो चीनी पर मजीद पैसे लगाए तो सेटिस्फेक्शन होती है 25, चीनी नहीं आएगी ना, चीनी तो पहले वो दी चुके हैं। अब गंदम भी दिखा उसका जाएगा कितना दिया है, तो इन दोनों 25 पर क्या करेगा, वो गंदम भी देगा, चीनी किसने पहले ले ली है। अब दोनों की सेटिस्फेक्शन मसावी है, बराबर है, इसलिए उस पर पैसा लगा रहे हैं जो उसके पास नहीं है। यानी उसे चीनी पहले ले ली थी, हालांकि गंदम और चीनी की सेटिस्फेक्शन का म्यार एक था, लेकिन उसने आप गंदम को तरजीह दी। क्यों, क्योंकि ये उसके पास पहले आ चुकी है, इसके पास मौजूद है। आप उसके 200 रुपए लग चुके और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के ऊपर लगे। अब आया तीसरा 100 का नोट जो लगाना चाह रहा है, उसके पास कुल 500 रुपए है, जिसमें से वो 100 फिर 200 फिर 300 रुपया स्पेंड करने जा रहा है। अब उसके पास बाकी 200 रुपए 300 जाएगा, चीनी नहीं देगा, गंदम नहीं देगा। अब इस पर सेटिस्फेक्शन है 25, इस पर सेटिस्फेक्शन है 20, तो कहां पर देगा, तीसरा नोट। तो जिससे क्या हुआ, उसे ज्यादा तस्कीन हासिल होगी, ज्यादा फायदा हो गया। अब 300 रुपए उसके यहाँ पर नोट करें तो लग चुके हैं। अब अगले नोट की तरफ आता है तो 400 रुपए। फिर कोई बात आता है कि नोट की सेटिस्फेक्शन का ब्याज बराबर है, यहाँ भी सिर्फ फायदा 20 का हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ फायदा क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो वो कहाँ लगाएगा, जो उसके पास कम है वो नहीं देगा, वो ले लेगा। क्या करेगा, वो गंदम चीज ले लेगा, अब गंदम के ऊपर। अब आए आखिरी नोट उसके बाद बेचारा रह गया है, वो है 100 रुपए का, 500 रुपए का लास्ट, वो कहां लगा देगा, दोबारा से चीनी पर। अगर वो स्पेंड इस तरह से करेगा तो उसे सेटिस्फेक्शन, उसे तस्कीन ज्यादा से ज्यादा। अब इसको मैं मजीद एक छोटी सी कैलकुलेशन के जरिए भी साबित करूंगा कि अगर वो ये 500 रुपया इस तरह से लगाएगा उसे फायदा ज्यादा होगा बजाय। अब आप आए दूसरे कि अगर उसके पास यही 500 रुपए है वो सिर्फ और सिर्फ चीनी पर लगा रहा है, यानी गंदम को वो नहीं खरीदता, एक चीज खरीद लेता है, दूसरी चीज नहीं खरीदता, उसे क्या फायदा। मिसाल अगर सारे यही 500 रुपए 5 भैया 100 फिर 100 फिर 100 फिर 100 और फिर 100 करके वो इस्तेमाल करे, 500 भैया इन चीजों पर लगाए, पहले वाला 30 का हो गया, फिर 25 20 15 और 10, और अगर इस सब वादा को जमा कर दे तो उसे कुल वादा का जो होगा 100, उसे एक तस्कीन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिसकी क्वांटिटी वाइज हमने एस्टिमेट किया है, अंदाजा लगाया है कि वो 100 का वादा है। अब दूसरे नंबर देखिए, अगर वो चीज नहीं खरीदता, सारे पैसे वो गंदम पर लगाता है, 500 रुपए इस पर लगा देता है गंदम पर, उसे फायदा क्या होना है, पहले 25 फिर 20 फिर 15 फिर 10 और फिर 5, और उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जबकि हम सारे ऐड करेंगे तो ये फायदा कितना होगा, 75। अगर वो पैसे चीनी पर लगाता है तो उसे फायदा होता है 100 का, अगर वो पैसे सारे के सारे इस पर लगाता है गंदम के ऊपर, उसे फायदा कितना होगा, 75। तो दोनों में देखें अलग-अलग रेट में है एक, लेकिन माशियात के अंदर हम बात कर रहे हैं कि सारा एक रैशनल कस्टमर है, समझदार है, वो उन चीजों पर पैसा लगाएगा जहां फायदा ज्यादा है। अगर वो इस रेशियो से तकसीम करे, जैसे हमने पहले कहा कि पहले 300 रुपया स्पेंड करता है किसके ऊपर, पहले 300 रुपए स्पेंड करता है चीनी पर और 200 रुपए स्पेंड करता है गंदम पर, देखते 500 के, लेकिन उसको फायदा ज्यादा है। बताइए कैसे, पहला नोट उसने लगाया था चीनी पर, फिर उसने दूसरा नोट लगाया था चीनी पर, फिर तीसरा नोट चीनी पर, इसका गंदम पर 200 रुपए लगा दिए, तो चीनी पर 300 रुपए लगने से उसका फायदा 75 का हुआ, 200 रुपए लगने से 45, और इन दोनों को प्लस करके आपने नोट किया, ये फायदा 120 आ सकता। यानी अगर वो रैशनल तरीके से 300 रुपए चीनी पर 200 रुपए गंदम पर लगाएगा, कभी वो फायदेमंद होगा। तो उसका फायदा देखिए दोनों की निस्बत ज्यादा है, 120 है। बात मेरी बच्चों समझ आ गई? तो ये जो बात हमने की
है कि हम एज ए गुड कस्टमर, एज ए रैशनल कस्टमर, समझदार जो साधक है वो हमेशा ऐसा करता है कि जब उसके पास कोई भी शेयर है वो उस तरह से इस्तेमाल करता है कि उसे फायदा ज्यादा से ज्यादा। अब इसे ग्राफिकली हम दिखाएंगे। पहले तो वो उसने हासिल किया, और अगर वो इस रेशियो से हटता है, कौन सी रेशियो, जो रेशियो यहाँ पर मौजूद है, 3 रेशियो से यहाँ पे है, 2 रेशियो यहाँ पर, और अगर इस रेशियो से हट जाए उसे क्या करना पड़ेगा, क्या वो हासिल करेगा, उसको हम ग्राफ पर भी ज़ाहिर करते हैं। अब आइए बेटा ग्राफ के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें पहला 100 रुपया किस पर लगाया, चीनी के ऊपर, उसे सेक्शन 30 क्यों है, तो यहाँ से हम उसको सेक्शन हमारी 30 कहाँ पर हो रही है, वो ये है, और यहाँ से हम इसको ग्राफिकली मिला देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा, दूसरा 200 का नोट, ये चीनी के ऊपर ग्राफ है, यहाँ दूसरा 100 का नोट कहाँ पर लगाता है, किसके ऊपर, चीनी पर ही लगाता है, उसकी सेटिस्फैक्शन होती है बच्चों 25। तो यहाँ पर 200 का नोट हम मिलाकर सेटिस्फैक्शन का मेयार हमारे 200 का होगा। तीसरा नोट भी यहाँ मिलकर लगाता है, 3 नोट वाली यहाँ पे भी है, वो 20 की सेटिस्फैक्शन है, तो हम 20 की सेटिस्फैक्शन 300 पर लगा रहे हैं। तो बेटा ये उसका ये ग्राफ, बात समझ आ गई बच्चों, ये उसका खत है जिसे हम कंट्रोल सावी फादा हो तब यूटिलिटी आपका शुगर जो है यहाँ पर हमें हासिल होगा। ये 3 रुपए हमने यहाँ पे लगाए, 300 रुपए हमारे चीनी का लगे। अब जो 200 रुपए हमने यहाँ पे लगाए हैं, हम उसका ग्राफ यहाँ पर बात करते हैं। पहला 100 जाने के बाद कोई सेक्शन मिली 25, तो 25 के ऊपर हमें 100 की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, 100 के ऊपर 25 की सेटिस्फैक्शन हमारा पहला ग्राफ। दूसरे के ऊपर हमें 20 की मिल रही है, तो हमने दूसरे का पॉइंट यहाँ पर बना दिया, उसका हद ये वो उसके हासिल है। आप देखें यहाँ पर अगर हम उसको सोचें तो ये सारे का सारा उसका हासिल है 300 का, और यहाँ उसको ये 200 का। ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली कि नहीं मिली, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द ज्योमेट्री में ये फायदा होता है, हमें फायदा ज्यादा होना है, नुकसान कम होना है। लेकिन अगर हम कर रहे हैं, हम ये फर्ज करते हैं बच्चों क्या कि हम यहाँ पर 3 रुपए लगाने के बजाय 300 रुपए लगाने के बजाय अगर 400 रुपए लगा दिए जाए, तो बात फॉलो कर दिया आपने, हमारे पास तो 5 नोट है 100 के। अब हम ये फर्ज कर रहे हैं उन 5 नोट में से 4 नोट अगर हम काम पर लगा दें चीनी पर, और यहाँ 2 नोट लगाने के बजाय इधर से 1 नोट इजाफा कर रहे हैं, 1 नोट इधर से खत्म कर रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ 1 रुपए इधर लगा रहे हैं, 4 रुपए या 400 रुपए यहाँ पर लगाएंगे, तो हमें क्या होगा, हमें क्या नुकसान होगा। अब ये चीज आपको कहते हैं मैं 14 रुपए भी इसमें ऊपर लगाता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन 15 की मिलती है। बात समझ आ गई बच्चों, ये मेरा ग्राफ यहाँ पर आ गया, तो ये मेरा है हासिल, यानी ये मेरा फायदा हो रहा है मुझे 1 रुपया इसके ऊपर, यानी 100 का नोट पर लगाने पर ये जो मैंने हाईलाइट किया है इतना हिस्सा मुझे फायदा हो रहा है। 400 की मुझे 15 का फायदा मिल रही है ना, तो वो ग्राफ में मैंने बात कर दी। आप इसको कलर भी कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, फायदा है। हमें फायदा हो गया ना, हमने 4 नोट लगाए, अब 300 की बजाय हमने स्पेंड किए 400, और इधर 200 लगाएगा, अब 200 की बजाय हम यहाँ पे कितना करेंगे 100 रुपए, क्योंकि मेरे पास टोटल 500 रुपए। अब 100 रुपए मैं इधर लगा रहा हूँ, तो अंदर से बात है बच्चों, मुझे ये छोड़ने पड़े थे, तो मैंने ये चीज छोड़ दी है। अब रोज करने का मैं ये चीज छोड़ दूंगा तो मुझे नुकसान होगा ना बच्चों। ये 25 का यानी 20 का मुझे फायदा होगा था, तो मैंने छोड़ दी, 20 छोड़कर 15 हासिल कर रहा हूँ, तो फायदा ये है इतना तो बात और बोला और नुकसान उससे ज्यादा है। अगर आप कोई लाइन पर बात करें तो वो करेंगे कि नुकसान की रेशो फायदे की रेशो से ज्यादा है। इसका मतलब अगर वो 4 रुपए के ऊपर और 1 रुपया किस पर लगाता है, कद्दू पर लगाता है, उससे नुकसान। यहाँ पे यही बात हमने करनी थी, और इसके उलट ये हो सकता है अगर वो 3 रुपए का लगाए 2 रुपए का लगाए तो नुकसान। वैसे ये है कि जहाँ पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन है उस पर पहले पैसे लगाए, जहाँ पर कम सेटिस्फैक्शन है उस पर बाद में पैसे लगाए, और दोनों को इस तरह से डिवाइड करें
पांचों आए इस्तेमाल होने पर उसे फायदा ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको जल्दी आपको वजाहत कर दूंगा। इसमें आपके पास कुछ मफरूज़ात आते हैं, इसका मतलब समझने के लिए ये होते हैं कि सारे के पास 5 इकाइयाँ हैं और वो 5 की 5 इकाइयाँ दूसरे विषय पर लगाएगा, ये 5 की 5 इकाइयाँ नहीं लगाएगा, तो 300 लगा देगा, 200 घट जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। ये कुछ इसके ऊपर शरायत भी लागू होती है, जिन्हें मफरूज़ात कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी कानून के मफरूज़ात और इसी कानून के जो है मुस्तशनियात को वज़ाहत के साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।